गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है लेटर राइटिंग पे। सो दिस इज़ द न्यू टॉपिक, ये एक नया टॉपिक है। अब हम इसमें सीखेंगे कि हमको लेटर कैसे लिखना होता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन लेटर राइटिंग। द फर्स्ट इज द फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज informal letter. Now you all know that why we write letter. We always write a letter to have a conversation with any of the person. It can be anyone. So in the letter there are two types of letter. First is the formal letter and second is the informal letter. Formal letters are used for the institution kind of things, like we have to write a letter to a director or an editor or someone like that, so we will write the letter. So these types of letter will come under formal letters. Now the next one is the informal letters. Now informal letters are the letters which we use to write for our friends, for our family, like our brother, sister, to our parents like mother, father, etc. So informal letters are used for family purpose or the ones which are in our family. But for the formal letter, these are letters used for the people like a director, principal, or editors, or people like that. So there are different kinds of format for the formal letter and informal letter. इनका format जो है वो अलग अलग होता है, आप इनका एक जैसा format नहीं लिख सकते। अब जो सबसे पहले जो आता है फॉर्मल लेटर, इसका आप सबसे पहले फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट समझने के बाद ही आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ इसका। सबसे पहले जो आता है वो आता है सेंडर्स एड्रेस। अब the first thing which comes in the formal letter is the sender's address. Now what is sender's address? Sender's address is the address, the one who is sending the message. Like I am sending writing a letter to someone, so it will be my address because I am writing the letter, I am sending the letter. So the one who is sending the letter, the address he will write here. So the first address will be the sender's address, means the one who is sending the letter. The next is date, means after writing the sender's address you have to leave one line, and in the next line you have to write date. Then it will come to the person whom you are sending the letter. For example, if you are sending a letter to the editor or to the manager or someone like that, so first thing you will write to, comma, and then you will write his designation, not the name. Please keep in mind that you have to write the designation of the person, not the name of the person. So like the, and here you have to write the designation of that person, like director, editor, manager, etc. So you have to write the designation of that person. Next, here you have to write receiver's address. रिसीवर्स एड्रेस मतलब कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, यानी कि जिसके पास ये लेटर जाएगा। यानी कि टू द, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग दिस लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ कंपनी और टू द एचआर ऑफ अ कंपनी, सो आई विल राइट टू द एचआर। अब कौन सी कंपनी का एचआर है वो, तो वो कंपनी का एड्रेस यहाँ आएगा। सो ये हो गया आपका यहाँ तक। नेक्स्ट जो चीज आएगी उसके बाद आएगा आपका रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड, अब अगर रिस्पेक्टेड सर, अगर मेल है तो सर, अगर कोई फीमेल है तो यहां पे आएगा मैडम। यानी कि अगर रिस्पेक्टेड सर है तो सर, अगर कोई मैडम है तो यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्टेड
मैडम। उसके बाद यहां से आएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर, इसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, ये हो जाएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब याद रखिए आपको कि ये सब चीजें जितनी हैं, ये सब चीजें एक एक लाइन छोड़ने के बाद ही आती हैं। इसके बाद आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है इसी के नीचे यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में ही आप यहाँ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। अब क्वेश्चन में आपको आपका नाम दिया होगा कि आपका नाम ये है या वो है, जो भी आपको क्वेश्चन में अगर नाम दिया होगा तो आप यहाँ पे आपका नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो नेम गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू विल राइट हियर XYZ. So it is very important that you find or you can see there that whether there is a name given in the question or not. If there is no name given in the question, then you will straight away write here XYZ. You will never write your name and you can never put your original name in the letter. Always write XYZ if there is no name given in the question. तो आप यहाँ पे XYZ लिखेंगे और ये लेटर आपका समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि ये पूरी चीज़ जो है ये मार्जिन से लग के आना चाहिए। जब आपकी कॉपी में यहाँ पे मार्जिन होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे मार्जिन इस तरीके से दिया होगा आपकी कॉपी में, सो ये चीज़ मार्जिन से चिपकी हुई होना चाहिए। एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, मतलब आफ्टर राइटिंग दी सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू लीव वन लाइन, देन आफ्टर डेट यू हैव टू लीव वन लाइन। टू और द मैंने द पोस्ट, इनके बीच में लाइन नहीं छूटेगी। टू नेक्स्ट लाइन में आएगा द और पोस्ट, उसके बाद एक लाइन छूटेगी रिसीवर्स एड्रेस रिस्पेक्टेड, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप, बॉडी लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद एक लाइन छोड़ के दिस इज अगेन द मार्जिन, ये मार्जिन बनाया है मैंने, इसके बाद एक लाइन छोड़ के आएगा थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। सो ये फॉर्मेट जो है ये है आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो ये इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए। अब हम एड्रेस कैसे लिखते हैं कि हाउ वी राइट द एड्रेस इन दी सेंडर्स एड्रेस एंड इन द रिसीवर्स एड्रेस। सो प्लीज नोट दैट सबसे पहले जब हम एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं जैसे अपना एड्रेस लिखूं, सो ये मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं रायपुर में रहता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउस नंबर, H stands for house और नंबर, हाउस नंबर 23 साई बंगलोज, रायपुर। अब आप देखिए कि मैंने कितना सिंपल तरीके से एड्रेस लिखा है। हमको इसी तरीके से एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, कॉलोनी का नाम। अब ध्यान रखिए आपको कि इसको एड्रेस को यहीं पे कंटिन्यू में नहीं लिखना है, एड्रेस छोटा होना चाहिए, एड्रेस शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सो फर्स्ट इज द हाउस नंबर, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द कॉलोनी, एंड थर्ड लाइन, इन द थर्ड लाइन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर सिटी।
ध्यान रखिए कि जो शहर का नाम है वो हमेशा एक नई लाइन में आएगा और मार्जिन से लग कर आएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे कॉमा डाल के रायपुर लिख देता, वो गलत हो जाएगा। सो जो रायपुर है वो आया कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में आया, क्लीन लाइन में। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि रायपुर जो है वो नेक्स्ट लाइन में, मतलब कोई सा भी शहर का नाम हो वो एक क्लीन तरीके से नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। अब यहाँ पे डैश डाल के आप लिखेंगे यहाँ पे आपका पिन कोड। पिन कोड आपको अपने शहर का याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं भी कोई भी एग्जांपल के लिए पिन कोड लिखूं तो पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट नंबर होता है। सो पिन कोड आप यहाँ पे लिख दीजिए 452321। सो ये एक रैंडम है, मुझे नहीं पता ये कहाँ का है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सो यू हैव टू राइट दी पिन कोड। ये रायपुर का पिन कोड नहीं है, ये खाली समझाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना घर का पता लिखेंगे। सो ये हो जाएगा इस तरीके से सेंडर्स एड्रेस। तो ये हो जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपको सेंडर्स एड्रेस कई बार दिया भी होगा कि दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सो एंड सो कॉलोनी। तो आपको अगर एड्रेस क्वेश्चन में दिया है तो आपको एड्रेस फ्रेम करना है। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने घर का ही पता डाल सकते हैं, जो आपका घर का पता है, और आप उसको डाल सकते हैं अपना यहाँ पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं। अब आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो जैसे अगर आपको बोला है तो ये इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। नेक्स्ट चीज आती है रिसीवर्स एड्रेस। अब जैसे अगर मैंने आपको कहा कि राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ कंपनी, तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज हैव टू मार्क अ कॉमा आफ्टर टू द मैनेजर। यू डोंट हैव टू राइट द नेम ऑफ द मैनेजर, यू हैव टू स्ट्रेट अवे राइट द मैनेजर, यानी कि लेटर जो है वो मैनेजर के लिए लिखा गया है। सो टू द मैनेजर, नाउ यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द कंपनी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा किसी भी कंपनी का, दिया भी रह सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं दिया रहता है। सो यू हैव टू फ्रेम द एड्रेस। नाउ हाउ विल यू फ्रेम द एड्रेस? फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट द एड्रेस ऑफ एनी सिटी, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एड्रेस फॉर भोपाल, अगर हम भोपाल में एक एड्रेस अज्यूम करते हैं, मैंने कहा है आपको कि राइट अ लेटर टू दी मैनेजर ऑफ या मैनेजर ऑफ टायर कंपनी। अब टायर कंपनी पे आपके एक मैनेजर को आप लिख रहे हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं कि टू द मैनेजर MRF टायर्स MP नगर जोन 2। अब आप ध्यान रखिए मैंने इस तरीके से एक एड्रेस फ्रेम कर दिया कि MRF टायर्स का मैनेजर है टू द मैनेजर ऑफ MRF टायर्स, ऑफिस कहाँ होगा MP नगर जोन 2 भोपाल। अब हमें पता है क्योंकि MP नगर जोन 2 भोपाल में ही है। सो भोपाल एंड पिन कोड। नाउ अगेन पिन कोड आप कुछ भी ले लीजिए। So this is how we make the address for the receivers address। इस तरीके से आपको बनाना है। हमने आपको इतना ही कहा क्वेश्चन में कि write the letter to the manager of a tire company। Now there are so many tires available in the market, so you can use any of the tires name। For example you can use C8 or any of the tire name। ज़रूरी नहीं है कि आपको टायर के लिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, आपको एडिटर के लिए आ सकता है, आपको किसी डायरेक्टर के लिए आ सकता है किसी इंस्टीट्यूट के। सो इस तरीके से यहाँ पे किसी के लिए भी आ सकता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एड्रेस को फ्रेम करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। सो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो ये भी एक उसका फॉर्मेट है और ये एक एग्जांपल था समझाने के लिए कि इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट जो चीज़ आती है फॉर्मल लेटर्स में वो आती है कि आपको इसमें कंटेंट आप लिखेंगे क्या। सबसे पहली चीज़ आप ये लिखिए, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है कि आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको अपना कंटेंट लिखना है। दूसरी बात ये कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है या अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं सो इट शुड बी एक्यूरेट। या अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन informing them अबाउट दी वर्स्ट कंडीशन ऑफ द रोड्स ऑफ योर कॉलोनी, कि आपको आपकी मोहल्ले की सड़कों की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो आपको आपकी परेशानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बतानी पड़ेगी, इतनी भी नहीं कि वो फिर वो गलत लगने लगे, लेकिन यहाँ परेशानी बहुत बड़ी है। जैसे कि अगर सड़कें ख़राब है तो उसके लिए आप ये लिखेंगे कि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, यानी कि द कंडीशन ऑफ द रोड्स आर वेरी वर्स, people cannot travel from that road, there are so many pits and the water has been filled in the pits, rainy water has filled in the pit, there are so much of mosquitoes lying over there। so इस तरीके से आप वहाँ पे अपने बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी परेशानी बड़ी लगे। और याद रखिए कि किसी भी फॉर्मल लेटर की जो वर्ड लिमिट है, जो वर्ड लिमिट है इसकी, वो होती है 100 to 150 वर्ड्स। सो ये है जो लिमिट होती है एक फॉर्मल लेटर की, वर्ड लिमिट होती है। और आप ध्यान रखिए कि आपको इसको कोशिश करिए कि आप इसको 3 पैराग्राफ्स में लिखें। 3 पैराग्राफ से मतलब पहला 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, फिर 50 और फिर 50, यानी कि पहले में तो आप बताएं, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सेकंड में आप उसको अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि आपकी ये समस्या है, या आपको क्या क्या एग्जैक्ट मतलब इसका डिटेल्ड जो वो होगा इन्फॉर्मेशन वो होगी सेकंड में। और थर्ड में आप ये बताएंगे कि किस तरीके से जिसको आप लिख रहे हैं वो आपकी मदद कर सकता है, और आप उसके बेहतर सुझाव बताएंगे कि आप थर्ड वाले पैराग्राफ में बताएंगे किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इसका तीनों पैराग्राफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो एक फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। तो ये जो आज की क्लास में था ये तो एक बेसिक पूरा एक इन्फॉर्मेशन थी कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक फॉर्मल लेटर लिख के देखेंगे कि किस तरीके से होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।